Hello, guys, welcome back to my YouTube channel. I am Isha, and this is Everything Ish. So, let me just start by saying that NEET results just got out, and I have always said that. And when I introduced my channel, मैंने clearly बोला था that I'll make this channel a safe space for me to share what I actually feel. So जब नीट का रिजल्ट आया, I saw the ranking, saw the marks, and I realized that competition is so tough at this point of time that I decided that I will share my NEET story time with you guys. That what actually happened with me during my NEET days, because I had a very bad time, very rough time preparing for NEET, and I was not focused at all. So I know that what people go through when results are out. लोगों को क्या लगता है, we are always stuck in a loop. हमें हमेशा लगता है कि हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं, मे बी हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, या फिर नहीं होगा, या फिर it is okay if you want to try again, and it's okay if you don't want to try again. It is completely fine if you want to go out and do something else, and it is also fine if you want to try again and again. It is completely up to you. So we are just so hopeless, so helpless जब result आते हैं and results are not in our favor. हमें पता है that we have tried hard but नहीं हुआ. So let me start by introducing myself. I am Isha, and I am currently a final year dental student doing my BDS from a private college. Yes, private, not government, not MBBS, nothing. I am a student who's doing dental from a private college. And if you're wondering that why I am sharing my story with you all, because I know how tough NEET results can be. I have given it two times, once in 2021 and 2020. So when I was preparing for my NEET, I was not at all focused. I was really distracted because that was the worst time of my life when I was preparing for NEET. It was really tough. In 2018, my 10th board results just got out, और उसके बाद my family and I decided that I'll go for PCB. उसके साथ साथ मेरे पापा ने मेरे को इंस्टीट्यूट ज्वाइन करवा दिया था. ऑफ कोर्स आकाश इंस्टीट्यूट उस टाइम पे इतना ज़्यादा चलता था, तो आई ज्वाइन दैट फॉर माय कोचिंग. And 2 years went by. I was doing a lot of things during my 11th and 12th standard. I was dancing, I was swimming, and I was doing a lot of co-curricular activities along with my studies. So I was not completely focused on my studies. फिर आए हमारे 12th के बोर्ड एग्जाम्स 2020 मार्च, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन कोविड हिट. सो हम लोग पीसीबी वाले थे, एंड everyone who was in 10th standard and who gave board exams in 2020 from PCB knows कि हम लोगों ने सारे एग्जाम्स दिए थे. हमारे कोई भी एग्जाम कैंसिल नहीं हुए थे. हमने एग्जाम्स दिए थे. उसके बाद नीट वॉज सपोज टू बी हेल्ड इन मे, बट ड्यू टू कोविड हर जगह लॉकडाउन लग चुका था. सो नीट वॉज पोस्टपोन्ड टिल September 13th. 13 सितंबर को हमारा नीट का एग्जाम था, एंड दैट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट. सो मार्च से लेके सितंबर का जो टाइम आया, जब लॉकडाउन था, सारी फैमिलीज घर पे थी, दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू समथिंग रियली पर्सनल, जो मैंने किसी से कभी शेयर नहीं किया. नॉट इवन माई पेरेंट्स, नॉट इवन माई सिस्टर, नो बडी नोज वट आई वॉज गोइंग थ्रू. आई वॉज going through something personal, and due to that I was not really focused on my studies. because जब आप लॉकडाउन में होते हो, आपकी फैमिली आसपास है, और जब आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो, यू कांट एक्सपेक्ट एवरीवन टू कोऑपरेट विद यू, बिकॉज सबकी अपनी अपनी लाइफ में चीज़ें चल रही होती हैं, एंड यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू समथिंग, एंड आई एम समवन जो सबको नहीं बताती है कि क्या चल रहा है. सो दैट हैपेंड, एंड उसकी वजह से आई वॉज नॉट रियली फोकस्ड ऑन माई स्टडीज. यस, आई वॉज नॉट फोकस्ड. सो जब 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद आंसर की आई, मुझे पता था दैट आई डोंट स्टैंड अ चांस एट ऑल, बिकॉज मैं एग्ज़ाम दे के आई थी, तो ऑब्वियसली मुझे ही पता होगा कि क्या हुआ था. मैं अपने पेरेंट्स को कितनी भी झूठी तसल्ली दे देती कि हाँ हो जाएगा, नहीं होगा. ऑब्वियसली आंसर की आनी थी, और मेरी एक बड़ी बहन है, और जब आपका एक बड़ा सिबलिंग होता है तो ऑब्वियसली उन्हें सब पता होता है आपके बारे में. सो येस, दैट हैपेंड. आई वॉज नॉट फोकस्ड एट ऑल. उसके बाद आई डिसाइडेड कि नहीं यार, जो हो गया हो गया. नाउ आई विल फोकस ऑन माई स्टडीज़, और मैं एग्ज़ाम दूंगी, अच्छे से एग्ज़ाम दूंगी.
मैंने डिसाइड किया मैं कुछ भी करके कैसे भी करके एक अच्छा सा मेडिकल कॉलेज अपने लिए चूज करूंगी, मैं अच्छे से पढ़ूंगी। ऑब्वियसली जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट भी नहीं, जब आंसर की आती है, आपको पता लग जाता है कि आप कहाँ हो। आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ अंदर से हिट करती है कि यार आई एम नॉट दैट बैड, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि मैं पढ़ नहीं पाई या मैं जो नहीं कर पाई। एंड एट दैट मोमेंट आपको भी लगता है दैट यू आर लेटिंग योर पेरेंट्स डाउन। सब कुछ आपके लिए आपके पेरेंट्स करते हैं। एंड जब रिजल्ट आया आई वॉज फीलिंग सो बैड कि व्हाट हैपेंड, मैंने अपने पेरेंट्स को लेट डाउन किया। एंड ऑब्वियसली यू कांट जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू लेट योर पेरेंट्स डाउन। आई डिसाइडेड मैं अच्छी से तैयारी करूंगी। सो आई डिसाइडेड मैं घर पे नहीं रहूंगी, मैं घर पे रह के नहीं पढ़ सकती हूँ। तो मैंने एक कोचिंग ज्वाइन करी, दैट वाज नॉट अ वेरी नोन इंस्टीट्यूट, एक बहुत बेसिक कोचिंग है। और वो मैंने यहाँ रह के नहीं, मैंने अपने मामा के घर रह के तैयारी करी, क्योंकि मुझे था मैं जितना घर पे रहूंगी, सबके आसपास रहूंगी, मैं उतनी डिस्ट्रैक्टेड रहूंगी। एंड ऑनेस्टली आई नीडेड अ चेंज ऑफ एनवायरनमेंट। सो आई वॉज द मैं पढ़ रही थी, आई वॉज ट्राइंग, आई वॉज कंसंट्रेटिंग। एंड देन comes the worst phase of my life, June 2021. In June 2021, I lost my grandfather. So मैं पढ़ रही थी and I get a call that my grandfather is no more. तो पहले तो फॉर अ कपल पीरियड ऑफ टाइम मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ था कि क्या हुआ है एक्चुअली। मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को कि ओके दिस हैज़ हैपेंड, ही इज़ नो मोर, वो मेरे साथ अब नहीं है। बिकॉज द पायनियर ऑफ अ फैमिली, क्योंकि हम आज तक सिर्फ उन पे डिपेंडेंट थे। और इवन नॉट जस्ट मी, माय पेरेंट्स, माय फैमिली, मेरे चाचू, मेरे पापा, हम लोग सारे वी ऑल वो सो ब्रोकन, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग करे क्या। एंड आई वॉज सो ब्रोकन, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम उनसे मिली थी ही वॉज कम्प्लीटली फाइन। और मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि जब मैं नेक्स्ट टाइम उनसे मिलूंगी तो मैं उनसे मिल ही नहीं पाऊंगी। दैट हैपेंड। उसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं एक्चुअली करूं क्या उस मोमेंट पे। तो आई स्टेड होम फॉर 15 days। मैं अपने घर पे रही जब तक एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन। हम प्रोसेस कर रहे थे कि क्या करें उस चीज़ में। 15 दिन जा चुके थे। तो आफ्टर दैट माय फादर सेड कि बेटा जाओ, वापस जाओ, पढ़ाई करो, आपका 2 महीने में एग्ज़ाम है। और पिताजी भी यही चाहते हैं कि आप अच्छे से अपना पढ़ लिख के कुछ करो। एंड आई वाज लाइक हाँ, मतलब अब किसी के लिए नहीं तो एटलीस्ट उनके लिए आई विल डू दैट, मैं पढ़ूंगी अच्छे से, मैं करूंगी। बट जो मैंने रियलाइज नहीं किया था कि मैंने ये चॉइस तो बना ली थी कि मैं वापस जाऊंगी और मैं अकेले रह के पढ़ूंगी। बट मुझे नहीं पता था कि मैं अकेले रह के अकेली हो जाऊंगी। एंड व्हेन आई वेंट बैक, मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी। आई वॉज नॉट एट ऑल फोकस्ड, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, मेरा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा था। बिकॉज मैं उस टाइम पे वहाँ थी, मैं अकेली थी और मैंने किसी से कुछ शेयर नहीं किया कि व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू। ऑफ कोर्स सबको पता था कि मेरे दादाजी गए हैं, तो आई वॉज नॉट हैप्पी। हैप्पी तो छोड़ो, आई वॉज नॉट इवन ओके। नो बडी न्यू दैट what was really happening with me. So उसके बाद I fell into the trap of depression. I was depressed without knowing that I was depressed. And वो चीज़ चल ही रही थी मेरे साथ. Then my health took a toll. A little backstory. I was diagnosed with PCOD in 2019 when I was in 12th standard, and that was completely okay. Everything was fine. ऐसा कुछ problem नहीं थी. But when lockdown began, उसके बाद my lifestyle completely changed. मैं बहुत ही एक्टिव लड़की थी एंड जब लॉकडाउन आया तो it suddenly became everything sedentary एंड माई हॉर्मोन्स वर इम्बैलेंस्ड। मेरा पूरा लाइफस्टाइल चेंज हो चुका था, मेरे हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो चुके थे, मेरी साइकिल इरेगुलर हो चुकी थी, नथिंग वाज फाइन। बट उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आई वाज लाइक इट्स ओके, इट्स फाइन, हो जाएगी चीज़ें अपने आप ठीक। बट नहीं हुआ। देन व्हेन जुलाई केम, जुलाई 2021, आई
had my period. My period started on 5th of July 2021 and वो चल ही रहे थे। एंड जब नीट का एग्ज़ाम हुआ 12 सितंबर 2021, तब तक मेरे पीरियड्स चल ही रहे थे। आई वॉज ब्लीडिंग फॉर 3 मंथ्स स्ट्रेट और मैंने उस चीज़ को कम्प्लीटली इग्नोर किया एंड दैट वॉज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। मेंटली ऑलरेडी आई वॉज सफरिंग अ लॉट, बट उसके साथ साथ माई physical health also was suffering. My physical health was suffering, and I realized कि okay, this is getting serious. मैंने ये चीज़ पहले रियलाइज़ ही नहीं करी थी। अगर मैंने पहले रियलाइज़ करी होती तो मे बी I would have been a little better, but no. During the lockdown, I was taking progesterones, estrogens, and hormones so that my body will start making more hormones, but हो नहीं रहा था। तो जब the exam was over, I went to my gynecologist. She did some tests. She gave me pill to stop the period. Period stopped. I took the test and my hemoglobin was 5.9 and my endometrium was 32 mm. I was diagnosed with PCOD and endometrial hyperplasia. Endometrial hyperplasia is a condition in which your endometrium lining gets multiplied. जब मेरा हीमोग्लोबिन 5.9 था, माई मदर गॉट रियली स्कैर्ड। मेरे मामा पैथोलॉजिस्ट है, मम्मा ने मामा को रिपोर्ट भेजी एंड माई मामा वॉज रियली एंग्री कि तुम लोगों ने बेटी का ध्यान क्यों नहीं दिया, उसका ब्लड देखो कितना कम है, वो कैसे सर्वाइव करेगी, तुम लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो। एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन एंड देन आई गॉट अ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। मुझे नहीं पता था चीज़ें इतनी सीरियस है, बट जब मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, आई एम AB पॉजिटिव, सो ब्लड मिल गया बहुत इजीली। फिर मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, 1 महीने तक मैं बेड पे थी। उसके बाद भी मेरा हीमोग्लोबिन जो था वो 7 या 8 आया था और उसके बाद भी डॉक्टर ने बोला था कि आपको इन्हें आयरन चढ़ानी पड़ेगी थ्रू IV। लकीली मेरे घर पे डॉक्टर्स हैं, तो आई वॉज हॉस्पिटलाइज्ड इन माई होम। मैं अपने घर में ही बेड पे लेटी रहती थी पूरा दिन और 3 महीने कॉन्टिन्यूसली मेरे आयरन चढ़ती थी। एवरी अल्टरनेट डे, हर अल्टरनेट डे पे मुझे आयरन चढ़ती थी फॉर अ 1 and 1.5 month। वो चीज़ कॉन्टिन्यू रही ताकि मेरे अंदर ब्लड डेवलप हो, क्योंकि ब्लड बनाना वो सो इम्पोर्टेंट ताकि वो मेरी एंडोमेट्रियम शेड कर सके। सो दैट वाज रियली इम्पोर्टेंट। तो वो सब चल रहा था और जब ये सारी चीज़ें चल रही थी ना, मेंटली आई वाज सो सिक। मेरे को पता नहीं था कि मैं करूँगी क्या। नीट का एग्ज़ाम हो चुका था, ऑब्वियसली मैं उसमें भी कुछ खास करके आई नहीं थी, बट एक डिसेंट स्कोर था, बट नॉट अ गुड स्कोर कि मेरे को कोई कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा अच्छे से। फिर ये हुआ, उसके बाद जिस दिन नीट का रिजल्ट आया उस दिन भी मुझे आयरन चढ़ रहा था। मुझे अच्छे से याद है, मेरे को बेड पे आयरन चढ़ रहा था और रिजल्ट आया, नोटिफिकेशन आया कि रिजल्ट आ गया है। मुझे किसी ने नहीं बताया कि रिजल्ट आ चुका है। मेरी दीदी गई, उन्होंने रिजल्ट चेक किया, मुझे स्टिल कोई आइडिया नहीं था कि रिजल्ट आ चुका है। उन्होंने स्कोर देखा, उन्होंने साइड में रख दिया, मुझसे किसी ने पूछा तक नहीं कि क्या हुआ रिजल्ट का, और ना उन लोगों ने मुझे बताया कि इतने मार्क्स हैं आपके, ये सब। फिर जब 1-2 महीने बाद आई गॉट बेटर, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर में व्हेन आई गॉट बेटर, मुझे तब पता लगा कि ये है। एंड देन माय फादर आस्क्ड मी दैट व्हाट डू यू वांट टू डू नाउ, अब आप क्या करना चाहती हो, यू वांट टू टेक अनदर ट्राई या आपको फील्ड चेंज करनी है, क्या करना है। एंड आई वाज श्योर दैट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट अगेन। एंड माई सिस्टर रियली सपोर्टेड मी। मेरी मम्मा चाहती थी मैं दोबारा करूँ, एक ट्राई लूँ, बट माई सिस्टर वॉज वेरी वेरी सपोर्टिव। दीदी हमेशा मेरा सपोर्ट करती है। उन्होंने क्लियरली बोला कि इसको नहीं करना है, मत करवाओ, क्योंकि क्या पता ये बेमन से अगर कर भी लेते हो अपना 100% ना दे पाए। एंड देन आई वॉज लाइक कि मुझे साइकोलॉजी ऑनर्स करनी है। मैं साइकोलॉजी ऑनर्स में एडमिशन लेने वाली थी। देन आई गॉट लिस्टेड इन दिस प्राइवेट कॉलेज और मुझे वो चीज़ बताई गई कि आपका डेंटल कॉलेज में हो गया है प्राइवेट में। और मैं उस टाइम भी ऐसे थी कि मुझे नहीं जाना, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में मेरे को कभी इंटरेस्ट था ही नहीं। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट कॉलेज वाज द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव। प्राइवेट वाज नेवर एन ऑप्शन, बट वो ऑप्शन आया एंड माई फादर सॉ दैट, बोलते फीस इज़ रियली अफोर्डेबल, वी कैन अफोर्ड इट,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैंने कहा कि नहीं पापा, मुझे प्राइवेट कॉलेज से नहीं करना है, यू नो। इट्स लाइक कि आई कैन डू एनीथिंग ऑन माई ओन, और मैं आपकी हेल्प से, आपके पैसों से कॉलेज में जा रही हूँ। पापा ने कहा नहीं बेटा, इट्स नॉट दैट, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन। यू वर नॉट फाइन, आप बहुत चीज़ों से डील कर रहे थे, इट इज़ कम्प्लीटली ओके, जस्ट टेक एडमिशन। और मैं फिर भी रो रही थी कि मुझे नहीं जाना है, प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए मैं प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाऊंगी। बट देन आई सॉ माई मदर, शी वॉन्टेड मी टू गो एंड आई वाज लाइक ओके मैं जाऊंगी, चल जाके देखते हैं। बट बिफोर taking admission, my parents took me on a trip in Ladakh. I was completely fine after December. This was in May. I went to Ladakh in May. और लद्दाख गई, आई वेंट ऑन दैट ट्रिप, एंड दैट ट्रिप वाज सो ब्यूटीफुल। हम लोग खारदुंगला पास गए थे, जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम होता है। और उस मोमेंट पे मेरे पापा ने मुझे एक चीज़ बोली कि सी, अगर हम यहाँ 4-5 महीने पहले आ जाते तो आपकी क्या कंडीशन होती है। वाज लाइक रियली, मैं जिंदा भी नहीं होती, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन लेवल ही इतना कम होता है। तो माई फादर सेड टू मी दैट वट एवर योर लाइफ इज गिविंग यू, टेक इट, एक्सेप्ट इट, जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। एंड आई वाज लाइक ओके, आई विल टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। सो या, आई डिड। मैंने एडमिशन लिया उस कॉलेज में। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आज मुझे 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, आई एम इन माई फाइनल ईयर, और मुझे पता भी नहीं लगा कि टाइम कैसे निकल गया। और मुझे कभी नहीं पता था दैट आई वुड टेक सच इंटरेस्ट इन डेंटिस्ट्री, कि डेंटल इतना हैपनिंग होगा, उसमें इतना आर्टिस्टिक वर्क चाहिए होता है, यू नीड टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन, बाय योर ओन हैंड्स, एंड इट इज somewhere fun as well. So I am happy what I'm doing right now. Mental and physical health will give you signals when to stop, when to start. Just start listening to them, because depression is a loop. You just get stuck in that loop. वो मेरा एक सिंगल एपिसोड था डिप्रेशन का, उसके बाद आई हैड 2 more एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन उसके बाद। एंड यू नो द थिंग अबाउट डिप्रेशन इज कि वो खत्म ही नहीं होगा until you are completely healed. And healing is a very long process. You have to learn it, you have to accept it, and you have to make sure that whatever you are doing is worth everything. Yeah, guys, that's it. That was my backstory. That was my neat story time. And why I wanted to tell you this is because it's okay, because you never know where your life takes you. I was not expecting to be in a dental college, in a private dental college, but yes, I am here and I am happy doing what I am doing. And so it is okay. Take your time, decide what you want to do, because universe is eventually planning for you. It is completely fine to have your own opinion, to discuss it with people, discuss it with your parents, your fellas, and everyone around you, and take a decision what you like, because it is going to matter in the next 5 years. And if something matters in the next 5 years, it is important. It is your career, it is your life. Whatever you want to do, just do it, but make sure that you are happy with it. Thank you for giving me your time. That's it for this video, and I'll see you in the next video. Okay, see you soon. Bye.